फर्स्टली तो जी जॉस बटलर को एज ए विकेट कीपर लिया गया है और इंडियन फास्ट बॉलर्स इंडियन प्रीमियर लीग का तो सर इंडियन फास्ट बॉलर तो होंगे, इसमें जाहिर सी बात है ये तो. I don't think anything special, sir. I think if you look at our record over the past 3 years, we are the team with the most wins and the highest percentage of wins. So if we continue to do that, it's going to be another great season for us. And just because it's a new season, I don't think we have to do anything different. I think over the past 3 years, we have played the most consistent cricket. And the wins and the matches, it speaks for itself. And I don't think we need to change anything. We'll continue keep playing the cricket that we have been playing over the past 3 years. I've had more experience captaining Gujarat than the Indian cricket team for sure, and the experience that I have here, the experience that I get here from Ashu Paji or Vikram Paji is immensely treasurable for me. And like you said, I've played under various captains, and each captain has a different quality, and there are some qualities that resonate with you as a person, and those are the kind of qualities that you tend to take forward, and that is what I'll try to do. Sir, बैटिंग लाइनअप पे एक बार आई थिंक जब मैच शुरू होगा तभी आपको थोड़ा बेहतर आइडिया होगा इस चीज़ का. आई थिंक बैट्समैन जो भी टीम में आते हैं या फिर जो भी उनको एक रोल दिया जाता है पूरी टीम की कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जिस हिसाब से पूरी टीम फ्लरिश करे और पूरी टीम अच्छा खेले, उस हिसाब से प्लेयर्स को उनका रोल दिया जाता. और जब मैच के पास पहुंचेंगे तब आई थिंक देखने को मिलेगा आपको. Are you talking about spin-friendly wickets, right? Yeah. So I think we have great spinners. We have the best T20 spinner in our team, and that speaks for itself. And with that, we have a good combination of Indian spinners. We have Sai, we have Washington, who's been part of the Indian cricket team for a very long time. So I think we have got some really experienced spinners. Firstly, I don't think as a team we are trying to chase 300 as a total. That's not what our aim is. We want to play the kind of cricket. We will assess what the condition is and what the situation is, and we want to play that kind of cricket. If the wicket or the situation allows us to make 240, 250, 260 runs, yeah, we are not saying no to that. But there might be a situation where 150, 160 would be an ideal total on a wicket. And hence, I feel as a team, if you are only looking to play one way, then you are not adapting the things how you should. And a great team, the hallmark of a great team is that it adapts the best to the suitable conditions and the challenges that are thrown at them. I think टीम की हमारी जो पिछले साल परफॉर्मेंस थी उतनी अच्छी नहीं थी, और वो चाहे पावर प्ले ले लो या उसके बाद ले लो, उस चीज़ में दर्शाती है वो चीज़ की अगर हम जिस तरीके से पावर प्ले में खेलना चाहते थे और उसके बाद भी जैसे खेलना चाहते थे, अगर हम उतने मैच नहीं जीत पाए या क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये जाहिर से बात है कि हम जो गेम के फेजेस होते हैं वहाँ पे हम उतना अच्छा नहीं खेले. तो एज अ बैट्समैन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम पावर प्ले में जाए और जितना पावर प्ले को हम अच्छे से खेल सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं वही करने की कोशिश रहती है. और आई थिंक इस बार होपफुली जो चीज़ें हम पिछले साल नहीं कर सके उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे. सर, डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में है. हो सकता है कि हमारा 150 पे एक ही आउट हो 15 ओवर में, तो उनको ऊपर आना पड़े बैटिंग करने के लिए. हो सकता है कि ऊपर से जल्दी विकेट गिर चुके, तो आई थिंक ये रोल और पोजीशन चेंज होती रहती हैं मैच के सिचुएशन के हिसाब से. जो हमारा जिस तरीके का हमारा मिडिल ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर है, आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि हमको इतनी डेप्थ है. नहीं तो जनरली टीम्स में इतनी डेप्थ नहीं होती है. हमारे पास आई थिंक नंबर 8-9 तक बैटिंग है, तो वो हमको अलाउ करती है कि हम ऊपर से थोड़ा और फ्रीली खेल सकते हैं. और जो मिडिल ऑर्डर, रोल ऑर्डर, वो तो आई थिंक सिचुएशन के हिसाब से सर चेंज होता रहता है कि टीम क्या सिचुएशन, अभी टीम को क्या डिमांड चाहिए. सर, पहला मैच आई थिंक पंजाब के साथ है हमारा. तो सर ऐसा कैप्टनसी और बैटिंग को जितना ज़्यादा हम सेपरेटली रखें उतना ज़्यादा बेहतर होता है. उसको मेरे एक्सपीरियंस से तो यही है कि अगर मैं उसको मिक्स ना करूं, क्योंकि बैटिंग अगर मैं जब बैटिंग करने जा रहा हूं तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि मैं एज अ बैट्समैन खेलूं वहाँ पे, और जो मैं डिसीजन एज अ बैट्समैन वहाँ पे लेता हूँ वो सबसे मेरे लिए तो सबसे बेहतर डिसीजन या अच्छे डिसीजन वही होते हैं कि मैं एज अ बैट्समैन डिसीजन लूँ बैटिंग करते हुए. कैप्टनसी का रूल जब हम या बैटिंग करके मैं आउट हो चुका हूँ तब, या फिर हम फील्डिंग जब कर रहे हैं उस समय पे या ऑफ द फील्ड उस समय पे ज्यादा उस चीज का रोल रहता है. बैटिंग करते हुए जितना
मैं अपने आप को एज अ बैट्समैन की तरह वहाँ पे बैटिंग करूँ तो वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर लेसन्स एज अ कैप्टन आप मेरे लिए जैसे पहला साल था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं थी मेरे लिए और मुझे सीखने को मिली। और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग चीज़ कैप्टनसी की यही रहती है कि हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है किसी प्लेयर के बारे में या फिर अपने बारे में। तो वो सब चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिली अपने बारे में और प्लेयर्स के बारे में, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे अपने ऊपर अगर मुझे एक अच्छा कैप्टन बनना है काम करने की ज़रूरत है। और होम एडवांटेज तो आई थिंक सर रहता ही है। टीम जो भी फ्रेंचाइजी टीम बनाती है वो उनकी जो कंडीशंस हैं, घर की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से वो अपनी टीम बनाती हैं। बट अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें सर 2023 में हम आई थिंक जितना अच्छा हमने होम में परफॉर्म किया उतना ही अच्छा हमने अवे में भी परफॉर्म किया था। तो अवे में भी परफॉर्म करना उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही ज़रूरी होता है जितना होम में परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। और फैंस का सपोर्ट तो लकीली हमको, सबसे बड़ा स्टेडियम है सर दुनिया में, तो फैंस का सपोर्ट तो हमेशा लकी हम कि स्टेडियम में खेल रहे हैं और हमको बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है उनका हर साल।